आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। और अब पेश है खबरों की तफसील। कांग्रेस के साबिक सदर और रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी इन दिनों बरतानिया के दौरे पर हैं। ने हिंद चीन मामले पर कहा है कि चीन नहीं चाहता कि भारत अमेरिका के साथ ताल्लुकात रखे। यह हमें कहकर धमकियां दे रहा है कि अगर आपने ताल्लुकात बरकरार रखे तो कार्रवाई करेंगे। इसलिए उन्होंने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में फौजें भेजी है। राहुल ने कहा है कि हमारे मुल्क के मुख्तलिफ इदारों पर कब्जा किया हुआ है। प्रेस, अदलिया, पार्लियामेंट और इलेक्शन कमीशन सभी खतरे की जद में है और किसी न किसी तरीके से कंट्रोल में है। RSS is you can call it a secret society. It's built along the lines of the Muslim Brotherhood, and the idea is to use the democratic contest to come to power and then subvert the democratic contest afterwards. And it's shocked me at how successful they've been at capturing the different institutions of our country. The press, the judiciary, parliament, election commission, all the institutions are under pressure, under threat, and controlled in one way or the other. So the conversation, the voice that was free-flowing, the debates, those have all stopped. Some of the biggest decisions taken, demonetization, which is demonetization of the Indian currency. We were not allowed to debate in Parliament. Right? The farmers' bills, where large numbers of farmers were out in the street, we were not allowed a conversation in Parliament. The GST, we were not allowed. When Chinese troops entered our territory, we were not allowed to have a conversation in Parliament. So that stifling made us ask ourselves a fundamental question. How do we communicate with the people of India when the media is biased, when the institutions are captured? And the answer we came up with in the Congress Party was this walk across the country, which has a tradition. There is a set of changes that are taking place in India, and the Congress Party and the UPA in its time were caught by those changes, right? The biggest change is that India is moving from a rural country to an urban country, right? And that changes the nature of the political discourse. That changes the nature of the structure. And we were focusing a lot on the rural space, and we missed the ball in the beginning on the urban space. And that's a fact, right? So those things are there. But to say that now the BJP is in power and the Congress is gone, I mean that's actually a ridiculous idea. And as far as the coercion, the violence that is concerned, it's not the Congress that's saying it. Congress is saying it, but you just got to travel in India and see it. I mean, you can see what's being done to the Dalit community, or you can see what's being done to the tribal community. You can see what's being done to the minorities. It's not that the Congress is saying it and objectively it's not being seen. There are articles all across in the foreign press all the time that there is a serious problem with Indian democracy. Right? It's also the way the BJP responds, right?
it's not interested in a conversation. They've decided that they know what's going on. Nobody else in the country understands what's going on. And that's it. And this is visible. I mean, you can ask any opposition party. You can see, for example, how the agencies are used. You can ask any opposition leader about how the agencies are used. My phone had Pegasus on it. That simply was not happening when we were in power. So there are things that are very obvious and are apparent to everybody. कल पूरे मुल्क में रंगों का त्यौहार होली मनाया जाएगा। ये त्यौहार बदी पर नेकी की फतह के अलामत के तौर पर मनाया जाता है। होली वाले दिन लोग एक दूसरे पर रंग लगाते हैं, रंग गुबार का इस्तेमाल करते हैं और एक दूसरे को मिठाइयाँ दी जाती हैं। आज होली का दहन पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी होली का दहन मनाया जा रहा है। इधर एलजी मनोज सिन्हा ने होली के पुरमसरत मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है। रंगों का त्यौहार इत्तेहाद और हम आहंगी के जज्बे की अलामत है। उन्होंने समाजी राब्ता साइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए मुबारकबाद दी और कहा कि खुशी और रंग सबकी जिंदगियों को छुए, भाईचारे के बंधन को मजबूत करे और सबके लिए अमन, खुशहाली और खुशहाली का आगाज करे। उसके साथ साथ ही PDP सदर महबूबा मुफ्ती, अल्ताफ बुखारी, सजाद गनी लोन, उमर अब्दुल्ला और दीगर सियासी और समाजी और मजहबी लीडरान ने भी हिंदू बरादरी के लोगों को होली की मुबारकबाद पेश की है। सर जम्मू में तो काफ़ी बढ़िया होली मना रहे हैं कि काफ़ी उत्साहित लोग हैं यहाँ पे। तो ऐसे तो मतलब कि कन्फ्यूज़न थी, पहले तो 7 को कोई कह रहा था 8 को था। उसके बाद ये है कि अब सभी को ये पता लग गया कि मतलब कि 7 को होली है। जम्मू में काफ़ी धूमधाम से होली मनाई जाती है सर। तो अभी आप देख सकते हैं कि कैसे हम अपने फ्रेंड्स सारे मिलके होली मना रहे हैं सर लग रहा बहुत अच्छा है कि इस बार सारे हर्बल कलर्स आए हुए हैं, मतलब कि कलर में क्वालिटी में बहुत बढ़िया आया हुआ है। बाकी बिल्कुल अच्छा है, सूखे कलर से होली खेलो, ना कोई वो है तो ना कुछ। तो यही पैदल चल के थोड़ा सा होली खेलो, बाइक साइक पे मतलब कि ये चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड करो ये चीज़ें। होली के पावन त्यौहार पे सारे जम्मू कश्मीर और पूरे हिंदुस्तान के वासियों को शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं सबकी होली अच्छी और स्वस्थ रहे। और काफ़ी अच्छा त्यौहार है, हमारा बहुत पुराना त्यौहार है हमारा और लोग मना रहे हैं। मान्यता देखिए ये अपने मान्यता ये हमारे पुरखों से चली आ रही है, तो हम भी उसी राह पे चल रहे हैं। अपने किस तरह के एंजॉय यहाँ पर कर रहे हैं बच्चे अपने खूब होली शोली खेल रहे हैं। अपने मेरे भी बेटा लेने के लिए आया हुआ है, बैलून शैलून लेने के लिए। अपने बहुत अच्छा लग रहा है सर। हम सभी फ्रेंड्स वगैरह इकट्ठे होके सभी होली सेलिब्रेट कर रहे हैं रोड पे। उधर BSF के जवानों ने भी होली का दहन सांबा सेक्टर के बैनुल-अक़वामी सरहद पर गाना गाकर और नाच कर मनाया है। एक दूसरे में मिठाइयाँ तकसीम करके मुबारकबाद भी पेश की है। सभी अपने अपने हाथ में ले लो, कैप निकालो हाथ में। सभी मीडिया कार्मिक जो भाई हमारे पास आते हैं हमेशा ये जानते हैं कि हम सभी त्यौहार यहीं मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ही मनाते हैं। सिविलियंस भी हमारे आते हैं, सारे हमारे साथ मनाते हैं। गांव के लोगों का काफ़ी कोऑपरेशन है हमारे साथ। मीडिया कार्मिक भी आते हैं और हमारे जवान जो ये महसूस करते हैं कि हम अपने घरों से दूर हैं, लेकिन आप लोगों के आ जाने से ये अपने परिवार के दूर होने का गम भूल जाते हैं। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग अपना समय निकाल के आज रंगों का पर्व मनाने के लिए हमारे बीच में पहुँचे हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है क्योंकि परिवार के साथ मैं सिर्फ अपने परिवार के साथ मनाता हूँ, बट आज मेरे पास 100+ जवान रहते हैं और मैं उन 100 परिवारों के साथ मनाता हूँ, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। मैं कभी मिस नहीं करता हूँ कि मैं अपने बच्चों के साथ नहीं हूँ, अपने पेरेंट्स के साथ नहीं हूँ, बट मेरे जवान मेरे साथ हैं। और अब मेरे जवानों का मनोबल देखते ही आपको अनुमान हो जाएगा कि हमारा मोरल किस लेवल का है। गाना हम लोग गाने से काफ़ी दूर रहते हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की पवित्रता को बनाए रखने के लिए बहुत सारी कमिटमेंट्स है जो हमें करनी पड़ती हैं। तो अगर आप लोग बोल रहे हैं तो मैं 2 लाइनें कोशिश करता हूँ। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। सर सबसे पहले तो आप सब लोगों को, पूरे देश को हमारी BSF की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा सर आप हमारे बीच आए।
सर ये है कि हम बॉर्डर पे रह के भी सिविलियंस के बीच मतलब सिविल लोग हमारे साथ आते हैं, हर त्यौहार हमारे साथ एंजॉय करते हैं, अच्छा लगता है सर। हमें महसूस नहीं होता कि हम घर से बाहर हैं। दीवार से दूर है, इसका थोड़ा सा गम है, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि हम लोग अलग अलग राज्य से एक साथ अनेक भाषा होते हुए भी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। उसका बहुत ही ज़्यादा खुशी होता है और यहाँ लोकल वासियों के साथ जो हम लोग का कोऑपरेशन होता है उससे ज़्यादा खुशी और बढ़ जाता है। मैं अपने देशवासियों को होली का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। श्रीनगर के इंदिरानगर इलाके में आज सुबह एक रिहायशी मकान में आग भड़क उठी, जिससे रिहायशी मकान को नुकसान पहुंचा है। श्रीनगर के इंदिरानगर इलाके में एक 2 मंजिला रिहायशी मकान में आग भड़क उठी है, जिसके बाद ही फायर सर्विस अमले को इत्तला दी गई और वह मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद ही आग पर काबू पा लिया गया है। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग ने रिहायशी मकान की पहली मंजिल को लपेट में ले लिया था, ताहम इसे मजीद नुकसान पहुंचने और दूसरी मंजिल तक फैलने से कामयाबी के साथ इसे काबू कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में जहां नौजवान लड़कियों और लड़कों ने हाथ से कुरान शरीफ तहरीर किया, वहीं सरहदी जिला राजौरी में 23 साला नाबीना आसमा मलिक ने 7 साल में फ़ोन से सुन सुनकर कुरान हिफ्ज किया है। राजौरी की एटी के 23 साला नाबीना को गुज़श्ता रोज़ एक मजहबी प्रोग्राम में दस्तारबंदी की गई है। गुलिस्तान न्यूज़ से बात करते हुए आसमा ने कहा है कि फ़ोन और घर वालों की मदद से आज मैं हाफिज कुरान हूँ। उन्होंने कहा है कि अगरचे वो बिनाई से महरूम है, लेकिन हाफिज कुरान बनने का शरफ हासिल कर लिया है। जो काम रोशनी वाले नहीं कर पाते वो नाबीना करके दिखाते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी मिसाल है, एक ऐसी दोशादा हैं जो नाबीना होने के बावजूद भी आज एक कुरान हिफ्ज किया है इन्होंने। इनसे बात करेंगे, उनका नाम भी जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? जी आसिया मलिक। आसिया, देख सकते हो बिल्कुल या नहीं? जी कुरान शरीफ तो नहीं दिखता, पर कुछ कुछ थोड़ा बहुत देख पाती हूँ। ऐसे कितना टाइम लगा आपको हिफ्ज करने में? 7 साल। क्या था, पहले ही था दिमाग में ये इस कुरान हिफ्ज करना है या किसी ने कहा था इसी? नहीं, ये बाद में मुझे खुद दिमाग में आया था, मेरा शौक बन गया, फिर उधर से मैंने कोशिश की, फिर हो गया। कितनी मुश्किलें आई इसमें आपको? इसमें मुश्किलें आई थोड़ी बहुत ही, लेकिन फिर भी अल्लाह की मदद थी। अल्लाह की मदद से मैंने कर दिया। अल्लाह ने बहुत मदद की इसमें। अल्लाह ने मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दिया, बहुत मदद की। आमीन। अल्लाह ने आपको मंजिल, आपकी इस मंजिल तक आपको पहुंचाने में किन लोगों का हाथ था? मेरी सारी फैमिली का हाथ रहा है लगभग। मेरे वालिदैन का हाथ, मेरे भाइयों का हाथ और मेरे उस्ताद का हाथ। जिस तरह आपने वो काम किया जो आंखों वाले भी नहीं कर पाते हैं, आपने नाबीना होने के बावजूद भी कुरान हिफ्ज किया। जो लोग आज भी दीनी तालीम से दूर हैं, उनके लिए किस तरह का मैसेज रहेगा आपका? उनके लिए मेरा यही मैसेज रहेगा कि तालीम सीखनी चाहिए, जैसे भी हो दीनी तालीम सीखनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये। आगे क्या प्रोग्राम है आपके? आगे मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है, अभी दौर करना है, फिर से करना है, अभी कर भी रही हूँ इंशाल्लाह, और करना है मुझे अच्छे से दौर करना है, इसको मुझे याद करना है इंशाल्लाह। कोशिश कर रही हूँ मैं, बस अल्लाह की मदद ही चाहिए। तो आगे यही है, अभी इसी को दौर करना है, ठीक से मुझे इसी को पढ़ना है। किसी मदरसे में ये तालीम हासिल की है, घर में ही? नहीं, ये मैंने घर में की है। घर में? यहाँ घर में किसी ने पढ़ाया आपको? यहाँ घर में मुझे मेरे भाइयों ने भी पढ़ाया और मेरे उस्ताद ने भी पढ़ाया, और मैंने फ़ोन के ज़रिए भी बहुत सीखा है। किस तरह पढ़ते थे आसिया? क्या फ़ोन, हेडफोन इस्तेमाल करते थे या फ़ोन से सुन के? फ़ोन से सुनकर, जो फ़ोन से सुनकर जैसा वैसा ही मैं रिपीट करती थी दोबारा उसी को। तो जिस तरह फ़ोन से सुन के आप रिपीट करते थे वैसे ही पढ़ते रहे। 7 साल का अरसा आपको लगा। अब जिस तरह बाकी लोगों की मदरसा जात में जो लोग हैं जिनको वक्त लगता है, जिस तरह आपके ख़ानदान की तरफ से, आपके घर वालों की तरफ से आपकी काफ़ी हेल्प की गई है, आगे लोग जिस तरह जो लोग दीनी तालीम से दूर होते जा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए एक आपका पैगाम चाहता हूँ। दूसरा में बुनियादी तालीम, जिस तरह स्कूल या स्कूल की तरफ कभी कोई रुख किया? जी, स्कूल की तरफ मैंने रुख नहीं किया, क्योंकि मैं चल नहीं सकती हूँ, जिसकी वजह से मैं स्कूल जा ही नहीं सकती थी। ये मैंने घर पे रहकर आसानी से सीख लिया, अल्लाह की मदद थी इसमें काफ़ी। आप देख सकते हैं मेरे साथ वो दोशादा थी जो
आंखों वाले लोग काम नहीं करते वो इसने करके दिखाया। 23 साल की उम्र में 7 साल के अरसे में इसने कुरान हिफ्ज किया और आज ये वो मिसाल है उन लोगों के लिए जो आंखों वाले लोग हैं, क्योंकि दीनी तालीम हासिल करना ज़रूरी है, मगर जो इसने करके दिखाया वो एक बहुत बड़ी मिसाल हम कह सकते हैं। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी। इलाके के लोगों ने शिकायत की है कि इलाके में न सिर्फ पीने के साफ पानी की किल्लत है बल्कि इलाके में दीगर बुनियादी सहूलियात का भी फुकदान है। बफलियाज कट चमीर में बुनियादी सहूलियात के फुकदान की शिकायत करते हुए मकामी लोगों का कहना है कि चमीर में आज के वक्त में भी इलाके के लोग पीने के साफ पानी से महरूम हैं, जबकि इंतजामिया हर घर नल से जल का दावा करती है, लेकिन ज़मीनी सतह पर इसका कोई वजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि इलाके के लोग आज भी लंबी मसाफत तय करके उन्हें पानी लाना पड़ रहा है। तालीमी निज़ाम भी खस्ताहाली का शिकार है। स्कूलों में असातिज़ा की कमी और स्कूली इमारतों की खस्ताहाली की वजह से तालीमी निज़ाम बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है, जिससे बच्चों का मुस्तकबिल तारीक दिखाई दे रहा है। उन्होंने LG इंतज़ामिया से मुदाखलत की अपील की है। सर, सबसे पहले तो मैं मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो इस दूर दराज इलाके में हमारी बात सुनने के लिए आए हैं। हमें ना ही रोड आज तक सर्वे तो बहुत बार हुए हैं, ना ही बिजली है ना ही पानी है। हमारे बच्चों की पढ़ाई का सिस्टम ख़त्म है रोड की वजह से। रोड होती तो हम इन्हें लेकर बाज़ार में पढ़ाते, यहाँ तो मास्टर लोग आते ही नहीं स्कूल में। रोड नहीं है तो वो भी कैसे आएंगे, बहुत मुश्किल आना उनका। सर्वे बहुत बार हुआ है लेकिन आज तक काम नहीं लगा इसका। पानी बहुत दूर से आधा घंटा पौना घंटा चल के लाना पड़ता है हमें, हमारी लड़कियों को। कोई पाइप वगैरह नल नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत पहले लगी थी, वो उखाड़ के ले गए लोग। सर अब हम तो बर्फ़ का पानी गर्म करके वो पानी भी नहीं जा सकते थे, वो इस्तेमाल करते रहे। जो पाइप कुछ लगी हुई हैं उनको फिर गर्म करते हैं हम, फिर उनमें पानी आता है। नहीं जाता ही कोई नहीं है, बहुत बार बोला भी हमने, DC साहब तक भी गए थे एक बार हम जी 1 साल पहले। हाँ, सुनता ही कोई नहीं हमारी। उसको उठा के लगभग 2-3 घंटे लग जाते हैं रोड तक ले जाने में। ले जाते हैं उठा के, कांधे पे उठाई के 4-5 पे उठा के ले जाते हैं और कुछ नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। नहीं PHC काम लगा हुआ है, बनी तो नहीं अभी तक, तो क्या दवाई होगी वहाँ। सरकार से अपील, हमें रोड दी जाए। सबसे पहले हमारी मांग है रोड की, रोड दी जाए, पीने का पानी और बिजली दी जाए। काम नहीं हुआ ज़मीनी सतह पर कोई नहीं, कागजी लिहाज से सभी काम हो चुके हैं वहाँ पे। जी जी, नाम निहाद पंचायत है हमारी जी। हाँ, नहीं हुए काम, कोई काम नहीं। सब से कहना चाहते हैं हमारे इलाके में विजिट करो, एक बार देखो हमारा क्या सिस्टम है वहाँ पे रोड का, देखो हमें कितना चलना पड़ता है। हमारा बीमार हो जाता है बंदा, कितना टाइम लगता है अस्पताल लाने में। सर हमें बहुत प्रॉब्लम है, मेन तो रोड नहीं है हमें, तो ना ही है। अगर रोड ना होने की वजह से जो कोई बीमार हो जाता है, जहाँ वहाँ से उठा के लाने में जल्दी रास्ते में जान चल जाती है। तो जो गवर्नमेंट ने PHC बनाई थी, NPHC, बहुत बड़ी बिल्डिंग, तो कल आप मीडिया वालों ने देखा जल्दी, तो वहाँ जल्दी दवाई जो है ऐसे घर में रखी है वो ख़राब हो गई है। तो उसको अगर दरवाज़ा लगा के जल्दी वहाँ रख सकते तो क्या। हमने कई बार CMO साहब के पास गया हूँ, मैं DC साहब के पास गया हूँ, तो हमारी ये इनसे गुजारिश है कि हमें रोड दें, जल्दी हमारे काम हल करें। जैसे 1947 से पहले ला थी वही ला था चिमरेट की इस वक्त भी, क्योंकि डिजिटल इंडिया बनाया इन्होंने जल्दी, तो क्या फ़ायदा है उसका जल्दी। हमें उसका कुछ फ़ायदा नहीं, ज़मीनी सतह पर कोई काम नहीं हुआ। बिल्कुल देखा मीडिया वालों ने, आप साथ थे, कोई नथिंग, एक पैसे का काम नहीं हुआ। कल जब सरपंच साहब को फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, वो गए ही नहीं मौके पर। तो हम क्या करें जब हमारा है ही नहीं कोई सुनने वाला, अल्लाह के बगैर कौन है। जब हम डिप्टी कमिश्नर के पास जब जाते हैं जल्दी वो भी नहीं, चीफ मेडिकल ऑफिसर के पास गए वो भी नहीं है, ZDO के पास जाते हैं वो भी बोलते हैं जी हम क्या करें जी। हम LG इंतजामिया से यही गुजारिश करेंगे कि जल्दी हमारे मसले हल करें, हमारे रोड निकाल के दें, ताकि जल्दी हमारा भी है जी, क्योंकि हम इस वक्त बहुत परेशानी के हालात में। वो क्या करें, पानी जल्दी पानी की परेशानी जल्दी, उसे गर्म करके जल्दी पानी शानी वगैरह इस्तेमाल करना, क्या करना, ठंडी जगह है, बर्फानी।
की बड़ी खबर शुमाली कश्मीर के बारामूला से बड़ी खबर आ रही है कि फोर्सेस की जानिब से 2 बालाई वर्करों को गिरफ्तार करने का दावा किया है, जिनके कब्जे से हथियार भी बरामद किया गया है। बारामूला के कुंजर इलाके में 2 बालाई वर्करों को गिरफ्तार किया गया। TRF से वाबस्ता जो 2 बालाई वर्कर हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की जानिब से जो बयान जारी कर दिया गया है उसमें कहा गया है कि पुलिस और CRPF की जानिब से कुंजर इलाका जो मोनखुड़ इलाका कुंजर का है वहां पर एक कैसो चलाया गया है और सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 मुश्तबह अफराद को हिरासत में लिया गया है, जिसके बाद ही ये पता चला कि ये दोनों TRF के साथ वाबस्ता है, बालाई वर्कर है। दोनों खुर्शीद अहमद खान और दूसरा रियाज अहमद खान, ये दोनों जंडपाल कुंजर के रहने वाले हैं और इनके कब्जे से AK-47 मैगजीन 2 और उसके साथ साथ ही AK-47 गोलियों के 15 राउंड उनसे बरामद हुए हैं, जबकि उसके साथ साथ ही जो कुछ पोस्टर थे TRF के वो 20 नंबर यानी कि वो 20 पोस्टर उनसे बरामद हुए हैं। ये पुलिस की जानिब से अपने इस बयान में कहा गया और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जब इनसे पूछताछ की गई है तो उनको ये हथियार कुंजर और आसपास के इलाकों में हमले के हवाले से उन्हें ये दिया गया है। ये पुलिस ने अपने बयान में कहा है और उसके साथ साथ ही अब उनके खिलाफ केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। कुंजर का इलाका है जहां पर पुलिस और CRPF ने एक मुश्तरका ऑपरेशन चलाया, जहां पर TRF से वाबस्ता 2 बालाई वर्करों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों का ताल्लुक कुंजर से है, जंडपाल कुंजर इलाके से है उनका ताल्लुक। TRF से वाबस्ता बालाई वर्कर गिरफ्तार, जिनके कब्जे से AK-47 मैगजीन 2 और AK-47 की 15 गोलियों के अलावा कुछ पोस्टर, ब्लैंक पोस्टर भी उनसे बरामद किए गए हैं। तमाम पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।